Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we are going to revise our essay Hunger and Population Explain. First of all, I'll give you a short summary of this essay. In this essay, the authors describe the issue of overpopulation and its effects on human life. She describes the meaning of hunger on a large scale. She says the hunger is a painful thing. It means not having enough to eat for a long time. It is a situation of hunger. This situation, when prevails for long on a large scale, it is termed as famine. The writer says the increasing population, medical advancement, crop failures, floods, earthquakes and other disasters are the main causes of famines. In this essay, she had also described some great famines of the past. She says the birth rate and death rates are directly linked with the population increase. The birth rate is relatively high in poor countries and they have to manage a huge population with limited resources. Underdeveloped countries face hunger due to the population explosions. Now we will go through textual questions of this chapter. Question number 1. What does hunger mean on a large scale as viewed by the author? कि हंगर की क्या मीनिंग है, असल में हंगर के क्या मानी है. हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर अ होल डे. इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट. इट मीन्स व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट at least as much again. It also means a situation in which you are always wondering where the next meal is coming from or even if there will be a next meal. इनकी वो हंगर की क्या मीनिंग है कि सिर्फ एक वक्त का या एक दिन का खाना अगर आपको ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंगर से गुजर रहे हैं, बल्कि हंगर की एक्चुअल मीनिंग क्या है. इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट, कि आपको कभी भी खाने को जो है वो इनफ जो मकदार में काफ़ी मकदार में ना मिले. और दूसरा ये कि जब एक वक्त का आप खाना खा रहे हो और आपको अगले वक्त के खाने का कंफर्म ना हो कि आपको मिलेगा भी, और अगर मिलेगा भी तो कहाँ से मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमाइंस ऑफ द पास्ट. इनके माजी में जो बड़े बड़े कहत पड़े थे उनको बयान करें. इन द पास्ट देयर वर वेरी destructive famines. One of the very first famine came in the reign of the Egyptian pharaoh. In the reign of Joseph, there was a famine lasted for 7 years. यानी पहला जो famine है वो इजिप्शियन फ़राउन ने मिस्र के ज़माने में आया, और दूसरा जो famine है उसका ज़िक्र जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में 7 साल तक का कहत पड़ा. From the birth of Christ until 1800, Europe faced famines in 350 different years. China faced 90 major famines in 1 century. The Russian famine in 1921 to 22 killed several million people. 10 million people starved to death in Bengal 1969 to 70. In 1942, 1 million people died of hunger in Bombay. A worst famine of the century struck in India in 1964 to 65. Question number 3 is how do famines occur? कि कहत किस वजह से आते हैं. Famines may be caused by many things. यानी कि इसकी कई वजूहात हैं. If the food available is not enough for the people to eat, or if sometimes crops fail due to some disease. इनकी इसकी एक वजह क्या है कि खुराक जो है वो लोगों के हिसाब से काफ़ी ना हो, और दूसरी वजह क्या हो सकती है कि समटाइम्स क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो हैं वो किसी बीमारी वगैरह की वजह से तबाह हो जाए. समटाइम्स ड्यू टू द लैक ऑफ रेन क्रॉप फेल्स एंड यील्ड नो ग्रेन फॉर द पीपल टू ईट. इनके और फैक्टर्स इसमें क्या हो सकते हैं, नेचुरल फैक्टर्स जैसे बारिशों वगैरह की वजह से फसलें तबाह हो जाए, फ्लड्स की वजह से. Question number 4. What is the main reason for population increase today? कि आबादी में इजाफे की आजकल सबसे बड़ी वजह क्या है. The main reason for population increase today is due to the number of people
who are born in any year being greater than the number who die। इनकी पॉपुलेशन आबादी में इजाफा जो है उसकी क्या मतलब है कि हर साल जो पैदा होने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जाए और मरने वालों की तादाद में कमी हो जाए। इन द पास्ट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ बेबीज़ ग्रू अप। Nowadays 19 out of 20 babies grow up due to modern medicines। कि अब साइंसी दौर और मेडिसिन की वजह से 20 में से 19 बच्चे जो हैं वो जवान हो जाते हैं। द डेथ रेट हैज़ बीन डिक्रीज टू मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इनकी शरह पैदाइश और शरह मौत का क्या मतलब है। एंड हाउ डू दे इफ़ेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। और ये किसी मुल्क की आबादी को कैसे मुतासर करती हैं। द रेशियो बाय विच बेबीज़ आर बॉर्न इज़ कॉल्ड अ बर्थ रेट। यानी कि बच्चों की जो शरह पैदाइश है उसको हम क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। द रेशियो बाय विच पीपल डाई इज़ कॉल्ड डेथ रेट। द डिफरेंस बिटवीन दीज रेट्स अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट के दरमियान का जो फ़र्क है वो किसी मुल्क की आबादी को मुतासर करता है। द हाई बर्थ रेट्स एंड लो डेथ रेट मीन्स दैट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एंड लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट मीन दैट पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कि जो आबादी में इजाफा हो रहा है जो बढ़ती हुई आबादी जो है वो इसकी क्या रीज़न्स हैं कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हैं वो किस हद तक रोल प्ले कर रहे हैं आबादी में इजाफे में। द पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इन द पास्ट मैनी पीपल वर किल्ड बाय वेरियस डिजीज़ लाइक टाइफाइड, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, मीजल्स etc. Child mortality rate was very high. Nowadays, science has very successfully discovered the treatment of various incurable diseases। कि अब साइंस ने मुख्तलिफ जो लाइलाज बीमारियाँ उनके कामयाब इलाज दरियाफ़्त कर लिए हैं। इस वजह से ये एपिडेमिक्स और इस तरह की बीमारियाँ कम होती जा रही हैं। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड। तो औसत उम्र जो है इंसान की वो बढ़ गई है। एंड द डेथ रेट हैज़ बिन reduced। Question number 7 account for the high birth rate in underdeveloped countries। यानी कि underdeveloped countries तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं वहाँ जो हाई बर्थ रेट है उसको बयान करें। द बर्थ रेट इज़ वेरी हाई इन underdeveloped countries। देयर पॉपुलेशन इज़ मेनली अनएजुकेटेड। और इसकी मेन वजह क्या है कि वहाँ अंडरडेवलप्ड जो तरक्की पज़ीर ममालिक में आबादी किस लिए ज़्यादा है कि वहाँ की आबादी जो है वो अनएजुकेटेड है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिलीज़। देयर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग लेवल्स। और उनकी ऐसे ममालिक की आबादी जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। एज अ रिज़ल्ट दे फेस एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देयर स्मॉल रिसोर्सेज। और उनके ज़राए जो हैं वो कम है इसलिए उनको एक्स्ट्रा बर्डन का सामना करना पड़ता है। देयर इकोनॉमी इज़ अनएबल टू मीट द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और इन ममालिक की जो मईशत है वो बढ़ते हुए आबादी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वाई इज़ बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस्ड कंट्रीज़। द बर्थ रेट इज़ नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस्ड कंट्रीज़। देयर पॉपुलेशन इज़ एजुकेटेड। इनके जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं है। और इसकी वजह क्या है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन वहाँ के जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं। दे नो द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिलीज़। दे एक्ट अपॉन फैमिली प्लानिंग। दे मेक अ कॉन्शियस एफर्ट्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ देयर फैमिलीज़। द गवर्नमेंट ऑल्सो इनकरेज स्मॉल फैमिलीज़ थ्रू वेरियस इंसेंटिव्स। क्वेश्चन नंबर 9 give a brief account of the poor economic conditions prevailing in underdeveloped countries। इनकी तरक्की पज़ीर ममालिक में जो माशी हालात जो बदतर माशी हालात हैं उनको बयान करें। अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। इनकी तरक्की पज़ीर ममालिक में किस चीज़ का मसला है, गुर्बत का मसला है। देयर सिटीज़ आर ट्रिमिंग विद बैगर्स। और उनके शहरों में भिखारी जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। द विलेजर्स कुड हार्डली
फुलफिल देयर नीड्स, और देहाती जो है उनको बामुश्किल अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। सच कंट्रीज़ लैक फैक्ट्रीज़, इन ऐसे ममालिक में कारखानों की कमी है। दे एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स, और इनकी एक्सपोर्ट्स जो होती हैं ज़्यादातर क्या होती हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, खाम माल। देयर द कंडीशन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इज़ पुअर, ऐसे ममालिक में सड़कों की और रेलवे की हालत ख़राब है। देयर आर फ्यू हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस देयर, और उसके साथ साथ ऐसे गरीब तरक्की पजीर ममालिक में अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस की तादाद भी कम है। Yes, next we will do some word meanings. They are helpful for your objective questions. Okay, look at busy, मसरूफ़ होना, occupied, engaged, working. Starve, भूखे मरना जो होता है, in need of food, be hungry, having nothing to eat. Last, continue, go on, keep on. Pangs, pain, sharp pain. Nutrition, nourishment, nutriment, food. Licorice, ये एक पौधा होता है, प्लांट विद द स्वीट रूट। फेमाइन, कहत जो होता है, स्कार्सिटी ऑफ फूड, फूड शॉर्टेज। अर्ली, इनके कदीम दौर जो था, प्रिमिटिव, प्रीमियल, प्री हिस्टोरिक। हंटर्स, किलर, हंट्समैन, हंटर। ग्रेव, सीरियस, अर्जेंट, क्रिटिकल। स्टार्वेशन, भूख से मरना जो है, एक्सट्रीम हंगर। लैक ऑफ फूड, फमाइन। काव इज़ फॉर कट। ग्रेनाइट, रॉक, चट्टान के नाम है। स्टोन, मार्बल। रेन, अहद हुकूमत जो होता है, पावर, रूल, सॉवरेनिटी। स्कार्स, शॉर्टेज, नॉट इनफ, शॉर्ट, लिटल, लैकिंग, यानी किस चीज़ की कमी होना। बिन्स, जो गल्ला स्टोर करने की जो बिन्स होती हैं। कंटेनर, बॉक्स, केन और क्रेट। वाइड स्प्रेड, यूनिवर्सल, कॉमन, जनरल। डिज़ास्टर, तबाही जो होती है। ड्यून, कैलेमिटी, मिसफॉर्चून। अवर्ट होता है रोकना। प्रिवेंट, स्टॉप, अवॉइड, ब्लॉक। प्लेंटीफुल, कसरत से होना। लार्ज, ह्यूज, बम्पर। हार्वेस्ट, फसल की जो होती है। क्रॉप, यील्ड, प्रोड्यूस। ग्रेन, cereals, wheat, oats, maize. General, common, public, broad. Folklore, fables, the traditional tales, लोक कहानियाँ जो होती हैं। इन्वॉल्व, इंक्लूड, कंटेन, कवर। रॉब होता है लूटना। बर्गल, स्टील फ्रॉम, लूट, प्लंडर। फीड इज़ फॉर गिव फूड टू, खुराक मुहैया करना। सस्टेन, प्रोवाइड फॉर। पोच, हंट इलीगली, गैर कानूनी तौर पे लूटने के मानी में आता है। टेक इलीगली, स्टील। पेरिश, तबाह करना। डाई, लूज वंस लाइफ, बी किल्ड। स्वीप, पास ओवर। रेस, स्प्रेड। रिसेंटली, न्यूली, लेटली, जस्ट। ओइंग टू, की वजह से। बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। कोप विद, हैंडल, निमटना। डील विथ, मैनेज। कार्गोज, लोड, गुड्स, बैगेज। आइसोलेटेड, रिमोट, आउट ऑफ द वे, लोनली। जाइजेंटिक, बहुत बड़ा जो होते हैं। ह्यूज, जाइंट, वास्ट, बिग। ट्रेमेंडियस, ह्यूज, ग्रेट, बिग। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, सडन इंक्रीज, अचानक किसी चीज़ का इजाफा। अ रैपिड इंक्रीज, एक्सीलरेशन। फ्रैक्शन, पार्ट, एक हिस्सा जो होता है। पोर्शन, सेक्शन। एडल्ट, मेच्योर, ग्रोन अप्स, फुली ग्रोन। एपिडेमिक, जो वबा होती है किसी चीज़ की। वाइड स्प्रेड डिजीज़, प्लेग, स्कोरेज। मॉर्टेलिटी, शर मौत। डेथ रेट, डेथ, लॉस ऑफ लाइफ। यॉज, ट्रॉपिकल डिजीज़, स्किन डिजीज़। पिंपल, स्पॉट, बॉयल, ब्लॉचेस, पैचेस, स्पॉट, एरप्शन। अल्सर, सोर, ज़ख़म हो जाते हैं जिसे।
बॉयल्स बन जाती हैं. डिफॉर्म्ड, मिसशेप्ड, स्पॉइल्ड, डैमेज हो जाना. डिप्रेस्ड, सैड, अनहैप्पी, ग्लूमी. कैरी आउट, फुलफिल, पूरा करना. कंडक्ट, अकम्प्लिश, परफॉर्म. मैसिव, ह्यूज, बिग, लार्ज, ग्रेट. पैराडॉक्सिस, कॉन्ट्रडिक्शंस होता है जो ऑपोजिट. पजल्स. relatively, comparably, comparatively. Let alone, not to mention, not to speak of. Acting out, to make a living. Sport, existence. Subsistence, livelihood. Rural, pastoral, देहाती जो थे. Country. Inadequate, insufficient, नाकाफी, not enough, too little. Raw, crude, खाम शक्ल में जो होता है. Unrefined, unprepared. Subject to, apt to, suffer from. Fluctuation, variations जो होती हैं. Impact, affects, असरात जो. Economy, मईशत, wealth, resources, financial state जो होती है. Bound to, likely. Abolish, ख़त्म करना. Do away with, eradicate, eliminate. Will, desire, ख्वाहिश जो होती है. Wish, determination. Distress, worry, pain. Make war on, fight, to battle, cross swords. Achieve, attain, complete, accomplish. Alive, alert to, aware of, आगाह होना किसी बात से. Make every effort, struggle, strive fully, full कोशिश करना. Exert oneself, यानी कि अपने पुरजोर उसमें कोशिश करना किसी काम के लिए. Yes, there are some textual lines with some synonyms. There are also some options of these synonyms. Corn is scarce and food is lacking. Scarce options are mean, short, long and soft. इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्कार्स का. ऑप्शन को क्या होगी? शॉर्ट. अ ट्रेमेंडियस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज टेकिंग प्लेस. अंडरलाइंड वर्ड इज ट्रेमेंडियस एंड ऑप्शंस आर वेनरेबल, रिमोट, बिग, ग्लोरियस. एंड करेक्ट synonym is tremendous for big. Famine has been a problem since the beginning of time. Underlined word is famine and its options are number 1 floods, wars, scarcity of food, transportation. And famine correct is its correct synonym is scarcity of food. 9.5 million people perished in a single famine. Underlined word is perished, तबाह हो जाना जो. Its options are penalized, suffered, died, deserted. And correct option is died. We have the power to abolish war if have the will. Underlined word in this sentence is abolish, ख़त्म करना. And the options are end, splash, fresh, start. And correct option is end. First one is correct. Abolish की correct option क्या आएगी? End. It indicates the greatest paradox of our times. Paradox is underlined word and its options are number 1 fiction, contradiction, grief and relief. Its correct option is contradiction. Paradox is for contradiction. The parts of India could not cope with ports of India. The ports of India could not cope with all the ships. Cope with is underlined word and its options are number 1 buy, number 2 steer, number 3 manage, number 4 destroy. Correct answer is manage. Joseph averted the widespread disaster by compulsory storage of food. Averted is for averted is underlined word and its options are avoided, made, changed and stopped. Correct synonym is avoided.
Thousands, millions will die of starvation because of famines caused by lack of rain. Underlined word in this sentence is starvation. Its options are number 1 hunger, affliction, satisfaction, sacrifice. Its correct word is hunger for starvation. We have the power to abolish the war. Abolish is underlined word. Its options are cause, effect, increase and finish. And its correct synonym is abolish. Thanks students. You have to prepare short question answers as well as the synonyms of these chapters. Thank you so much.